केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में भाजपा सीईसी की बैठक के लिए पहुंचे। केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का यह बड़ा कदम है। इसके तहत अब 3 पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। उधर केंद्र द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सीएए को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। इसे पार्टी में बड़ा मुद्दा बनाया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही के अपने चुनाव भाषण में कई बार नागरिक संहिता संशोधन कानून या सीएए को लागू करने की बात कर चुके हैं। उन्होंने ऐलान किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा। अब केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसे लागू कर दिया है। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति में सीईसी की बैठक में भाग लेते हुए पीएम मोदी सूचना पे डीएमके के सांसद तिरुचि एवं शिवा कहते हैं, आज उन्होंने नियमों के साथ अधिसूचित किया है। आश्चर्य की बात यह है कि यह बिल 2019 में संसद में पारित किया गया था। हालांकि यह उन लोगों को नागरिकता देने में बहुत ही उदार प्रतीत होता है जो अन्य राष्ट्रों द्वारा सताए जाते हैं, लेकिन यह मुसलमानों और उन सूची से छोड़ने के माध्यम से पूरी तरह से आशिक है। संसद में मैंने इसका विरोध किया और डीएमके की ओर से मैंने एक संशोधन दिया है। See, today they are notified along with the rules. Everyone is waiting for the rules. The Ministry of State for Home Affairs has recently told that we will come out with the rules of the CAA. And the surprise is this bill was passed as in the Parliament in the year 2019. And it's though it appears to be very generous of giving citizenship to those who are persecuted from other nations, but it's totally partial by way of leaving Muslims from that list. So when the debate went on in the Parliament, not only during my speech I opposed it, I on behalf of DMK gave an amendment, very important 3 amendments. One is, along with the 3 countries, Pakistan, Afghanistan and Bangladesh, includes Sri Lanka. Along with the word religiously persecuted, ethnically persecuted. And third is, along with the 5 religions, Christians, Hindus, Parsis, Sikhs and Buddhists, include Muslims. So in that case, that the amendment was put to vote. The surprise comes only after. At that time, DMK had only 5 members. But I secured 99 in favor and the government got 124. And among that 124, 13 was that of ADMK. So if you minus that 124 from 13 from 124, it becomes 111. And if you added to my amendment, it is 112. So had that amendment been upheld and included in the bill, the controversy that has cropped up now would not have been there. 1.5 Sri Lankan Tamils would have got citizenship, as well as Muslims will not feel that they are let down. So whatever BJP might have done, it is their agenda, always to sideline the Muslims. But why ADMK went with them? And now that they have severed connections at the time of elections, they say that we are not at all connected with that. We don't support, we are for Muslims. So they cannot cheat, they are only playing a double game. When the right opportunity comes, that too when a bill is being passed in the Parliament, it's the responsibility of any political party to do their duty as per their policies. You know very well, ADMK has no policy, no definite stand. And so what the country is facing now, and if at all, if some people get discontent that because of this, or dissatisfied, all these are because of ADMK and BJP. And after that, my amendment was passed. Everyone knew about the voting pattern, and so they just many went out. And when the bill was passed, it was much lesser. Thank you. Thank you.
अधिसूचना पे राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा कहते हैं, लंबे समय से मांग थी। मैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हमारे भाइयों को सहायता प्रदान करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए आगे ये क्या कह रहे हैं। हाँ, देखिए लंबे समय से मांग चल रही थी। जो हमारे भाई थे किसी भी कारण से आजादी के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में थे, वहां से जो प्रताड़ित होकर के आए थे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, उन लोगों को सहारा देने के लिए आज मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक और अच्छा फैसला आया है कि उनको यहाँ नागरिकता भी मिलेगी और यहाँ की सुविधाएं भी उनको मिलेंगी। आज ऐसा समय आया है, मैं निश्चित रूप से ये सीएए का जो आज फैसला आया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बंगाल बरसाता से टीएमसी सांसद काकोली को तख्तीदार कहती है, मैं इसके लिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की शुक्रगुजार हूँ। बीजेपी के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये टीएमसी के नेता इतना चिढ़े हैं कि सीएए के लागू होने से पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ इनकी बातों का वैल्यू ही नहीं रहा। देखिए, बीजेपी जितना अन्याय किया, देश भर में महिलाओं पर अत्याचार किया और बांग्ला को वंचित किया, उसके खिलाफ लड़ाई जारी रहेगा। मैं गर्ल ममता बनर्जी और अभिषेक पर आभारी हूँ। हाँ, जहाँ कोई नहीं था वो खाली मार्च में, खाली मैदान में बात करके चला गया। सीएए की अधिसूचना पे ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली कहते हैं, हमें पता चला है कि यह अधिसूचना जारी कर दी गई है और सभी समुदाय के सदस्यों से मेरी अपील है कि हम सभी को शांति बनाए रखें और हमारी कानूनी समिति पूरी अधिसूचना का अध्ययन करेगी और फिर कोई बयान जारी करेगी। From the press we have come to know that this notification has been issued, and my appeal to all the community members is that we all should maintain peace, and our legal committee will study the full notification and then only our point of view, any point of view can be or any statement can be. संशोधन अधिनियम सीएए पे भाजपा नेता मजविंदर तीरथा कहते हैं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देता हूं। यह हमारे लंबे समय से मांग थी कि देश में सीएए लागू किया जाए और हमारे भाई जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए हैं, जिन्हें धर्म के कारण प्रताड़ित किया गया है, उन्हें अपना धर्म छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। उन्होंने देश छोड़ दिया लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता दी जानी चाहिए। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का और भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं, जो लंबे समय से हमारी मांग थी कि देश में सीएए लागू होना चाहिए और जो हमारे भाई हैं अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से आए हैं, जिनके धर्म के ऊपर जब बाढ़ आई, जिनके धर्म के कारण उनको प्रताड़ित किया गया और उनको मजबूर किया गया कि अपना धर्म छोड़ो, उन्होंने देश छोड़ दिया लेकिन धर्म नहीं छोड़ा, ऐसे लोगों को भारत के अंदर नागरिकता दी जाए। इसके लिए जो आज भारत की सरकार ने आज ये फैसला लिया है, इसको लागू किया है, इसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का फिर से धन्यवाद करता हूँ। मैं सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान से उन परिवारों को लेके आया जिनके बच्चियां वहां सुरक्षित नहीं थी, जिनके धर्म पर बन आई थी, और मुझे लगता था कि जब तक इनको नागरिकता नहीं मिलेगी ये हमारे पे बहुत बड़ा आत्मा पे बोझ रहेगा। हमने इनके परिवार तो बचा दिए लेकिन अब वे सम्मान से देश में रह सकें ये इनके लिए जरूरी था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिनको नागरिकता नहीं मिल पाती, ना वो बच्चे अपने स्कूलों में भेज पाते हैं, ना उनके पासपोर्ट बन पाते हैं, ना उनके बच्चे आगे बढ़ पाते हैं, ना कारोबार कर पाते हैं। इसलिए
आज देश के अंदर ये सबसे बड़ा तोहफा दिया है मोदी जी ने और अमित शाह जी ने उन परिवारों को जो लाखों की तादाद में हैं और दूसरे मुल्क अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से इसलिए निकाले गए क्योंकि उनके धर्म के ऊपर बनाई थी। ऐसे लोगों को आज सम्मान से जीने का प्रधानमंत्री जी ने मौका दिया है। मैं फिर से उनका धन्यवाद करता हूँ। इस मूव को वेलकम करता हूं। अधिसूचना पे नॉर्थ ईस्ट के डीएसपी जय तिर्की कहते हैं, हमने उत्तर पूर्व जिले में व्यवस्था की थी कि 2020 में हमारा अनुभव अप्रिय था, जिसके परिणाम से भारी नुकसान हुआ था। नियमों का आज अधिसूचित किया जाएगा और हम पुलिस मुख्यालय द्वारा सतर्क कर दिया गया था। हमने अमन कमेटी की एक बैठक की थी जहां हमने दोनों समुदाय के लोगों को जानकारी दी थी। हमने संभावित संकट मोचन कुछ ज्ञात अपराधियों को टैग किया है। हम बीट कांस्टेबल के संपर्क में हैं और सोशल मीडिया पर भी नजर रख रहे हैं। हम 2 दिनों के लिए एक फ्लैग मार्च कर रहे हैं और कल से व्यापक फ्लैग मार्च करेंगे। संवेदनशील क्षेत्र से ड्रोन से के जरिए नजर रखा जाएगा। ये लागू हो गए जी, क्या अरेंजमेंट रहेंगे? देखिए, नॉर्थ ईस्ट जिले में तो हमने काफ़ी व्यापक अरेंजमेंट किया हुआ है, बिकॉज जो पहला हमारा एक एक्सपीरियंस था 2020 का, तो बहुत अनप्लेजेंट था। 2020 में फरवरी के महीने में कुछ लोगों ने इस मौके का फ़ायदा उठा के कन्फ्यूजन फैलाया और भारी नुकसान हुआ। तो लॉ तो पहले ही पास हो गया था 2019 में। कोई भी लॉ लागू करने के लिए रूल्स बनाने पड़ते हैं, तो जो रूल्स हैं वो शायद आज नोटिफाई होंगे। तो हम लोग को पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से भी पहले से थोड़ा सा आगाह कर दिया गया था, थोड़ा सा आभास था। तो हम लोग इसमें पिछले काफ़ी दिनों से जुटे हुए हैं। और सबसे पहले तो हम लोगों ने एक जो हमारा अमन कमेटी और भाईचारा कमेटी प्लेटफॉर्म होता है, तो वहाँ पे थानों में बुला के, एसीपी सब डिवीज़न के ऑफिस में बुला के और ख़ुद मेरे ऑफिस में बुला के मैंने दोनों कम्युनिटी के काफ़ी सारे लोगों से बातचीत की और उनके जो भी सवाल थे, जो उनको मिसकंसेप्शंस थे, वो सारे हम लोगों ने दूर किए। उनको बताया कि ये सिटीजनशिप मिल रही है, किसी की जा नहीं रही है। और जो 3 हमारे पड़ोसी देश हैं, वहाँ पे जो लोग भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं उन लोग के लिए सहूलियत है। तो एनआरसी वाली कोई बात ही नहीं है, तो सिर्फ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। तो कोई इनपुट भी मिला था, ऐसी कोई इनपुट इस तरह का नहीं था कोई, पर हम लोग पहले से प्रिकॉशन लेके चल रहे थे। और इसलिए हमने ये काम और किया कि जो हमारे जो पोटेंशियल ट्रबल मेकर्स हैं और जो मेरे नॉन क्रिमिनल्स हैं, उन लोग को हम लोगों ने टैगिंग किया है बहुत ही अच्छे तरह से। और हमारे जो बीट कांस्टेबल्स हैं, सबको पता है कि उनकी क्या क्या जिम्मेदारी है। मैंने पर्सनली अपने बीट कांस्टेबल से बात करके पूछा कि भाई तुम्हारे पास कौन कौन से टैग क्रिमिनल्स हैं, कौन कौन से आपके टैग ट्रबल मेकर्स हैं। तो ऑलमोस्ट सभी ने टच बेस किया है, सभी से हमारी बातचीत चल रही है। और हम लोग सोशल मीडिया पे भी नज़र गड़ा के रखे हुए हैं कि सोशल मीडिया पे कोई भी एडवर्स या कोई ऑब्जेक्शनबल पोस्ट आता है तो उस पर भी तुरंत कार्रवाई करेंगे। फ्लैग मार्च मेरे ज़िले में पिछले 2 दिन से चल रहा है और कल से हम लोग उसको थोड़ा सा और एक्सटेंसिव फ्लैग मार्च कराएंगे। और जो हॉटस्पॉट्स हैं मेरे ज़िले में, अबाउट 43 हॉटस्पॉट्स मैंने पहले से आइडेंटिफाई किए हुए हैं। कुछ मेरे थानों के इलाके हैं जो ज़्यादा संवेदनशील हैं, तो उनको हम लोग खास ध्यान रखेंगे। और बिल्कुल, मैंने कुछ आपको वीडियोस भेजे भी थे, तो ड्रोन से भी हम लोग नज़र रख रहे हैं। और आई एम वेरी श्योर कि हम लोग ने इस बार जो पहले कदम उठा लिया, जो पहले हमने एफर्ट कर लिया है, दैट इज़ गोइंग टू गिव अस गुड रिजल्ट्स और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा फोर्स भी दी गई है? एक्स्ट्रा फोर्स से ही मैं फ्लैग मार्च कराता हूँ, 2 दिन से मैं करा रहा था और कल से मुझे थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा फोर्स मिलेगी। हमारी विजिबिलिटी ऑन द स्ट्रीट, दोनों चीज़ के लिए, एक तो रीअश्योरेंस करने के लिए, दूसरा डेटरेंस भी है कि जो बदमाशी करेगा उसको हम लोग नहीं बख्शेंगे। की अधिसूचना पे भाजपा नेता खुशबू सुंदर कहती हैं कि यह सबसे अधिक वांछित चीज है। डीएमके की अपने स्वार्थ के लिए सीए का विरोध करती रही है। क्या वे सीए का पूरा विवरण समझती हैं? वे इस डर को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीए के लागू होने से देश में अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष रूप से मुसलमानों पर इसका असर पड़ेगा।
No, it's a most wanted thing. It's a most wanted thing. CAA, DMK has been opposing CAA for their own selfish reasons. I am asking, please tell me, do they understand or they read the complete details of CAA? Where does it, they have been trying to spread the fear that the implementation of CAA will affect the minority community, especially the Muslims in a country. What they do not realize, the implementation of CAA will help the Indians who have been living on the borders from Bangladesh or any other different bordering countries where they have been living like refugees. It will give them the status of citizenship. And that includes people, Indians from every community and every religion. It is not about that. And I would like to tell them that rather than talking about CAA, I would like to tell DMK, please hold a protest and say that what Jafar Sadiq has done in Tamil Nadu today, where 3,500 kgs of drug has been supplied to Tamil Nadu. Imagine 3,500 kilograms of drugs. It's not something which is very normal. And when you look into ये अधिसूचना पे कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती नासिर उल इस्लाम कहते हैं कि इस मुद्दे पे मैं अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जहां मुझे जो कुछ भी कहना होगा बोलूंगा। अमेंडमेंट एक्ट जो है वो नाफिज किया है और मुख्तलिफ मुस्लिम जो उलमा हैं उनकी तरफ इस पर रिएक्शन आया है, तो आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे किस तरीके से आप? देखिए, मैं इस वक्त सिर्फ चांद का फैसला इस वक्त कर रहा हूं और इस पे अलग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और मैं उसमें आऊंगा और जो कुछ मुझे कहना होगा वो उसमें कह दूँगा। अधिसूचना पे एनसीपी नेता और सांसद सुप्रिया सुले कहती है, मुझे ड्राफ्ट के माध्यम से जानना होगा। मैं अभी अपने निर्वाचन क्षेत्र में हूँ, इसके बारे में अधिक विवरण आने के बाद मैं इस पर बयान दूंगी। सीए को लेकर और दिया है तो लागू हो गया है सीए एक तरीके से देश में? मेरे ख्याल से ड्राफ्ट देखना पड़ेगा। अभी तो सुनने में आया, मैं तो निर्वाचन क्षेत्र में हूँ मैं आपसे ही सुन रही हूँ, तो थोड़ा पता करके मैं जरूर आपको एक स्टेटमेंट कर दूँगी। उत्तर प्रदेश अयोध्या में CAA पे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि यह बहुत अच्छी बात है। कुछ सिख, ईसाई और हिंदू जो बाहर से आए हैं अब उन्हें भी नागरिकता मिल जाएगी। ऐसे हैं, कुछ सिख हैं जो बाहर से आए हैं, कुछ ईसाई हैं जो बाहर से आए हैं, कुछ हिंदू हैं जो बाहर से आए हैं, कोई मुसलमान भी हैं जो बाहर से आए हैं। उन सभी के लिए इससे नागरिक संहिता के अनुसार सभी को अधिकार मिल जाएगा और ये बहुत अच्छी बात है। जो बहुत दिनों से बेचारे यहाँ भारत में रह रहे हैं लेकिन वो यहाँ के नागरिक नहीं बन पाए हैं, वो सभी के सब बन जाएंगे। ये सरकार की जो देन है बहुत अच्छी है, बहुत उत्तम है। पीएम मोदी द्वारा द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। दिल्ली और हरियाणा के बीच यात्रा के समय को जो काफी कम करेगा, जो रोजाना इस मार्ग से जाने वाले यात्रियों के लिए बहुत ही राहत को सुनिश्चित करेगा। आगे 1 लाख करोड़ की राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है। यह आज इसकी नींव रखी जा रही है जो बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के साथ साथ देश को शक्ति देने के लिए मोदी सरकार की दृढ़ संकल्प को दिखाता है। 140 करोड़ देशवासी हैं मोदी जी का परिवार, जिनके लिए वे दिन रात बिना थके बिना रुके नेशन फर्स्ट के संकल्प के साथ काम करते हैं। बीते 10 साल सेवा, समर्पण और संकल्प के रहे हैं, जिसमें देश ने रिकॉर्ड निवेश के साथ अभूतपूर्व स्पीड और स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है। रोड, रेल, एयर, वाटर, हाईवे, हर कनेक्टिविटी को लगातार मजबूत होते देखा है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग ड्राइव शुरू हुई। आज देश में अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। साल 2013-14 में हर दिन 12 किलोमीटर हाईवे बनते थे। हमने लगभग प्रतिदिन 30 किलोमीटर हाईवे हर दिन बनाए। देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग और बेहतर हो, ये मोदी जी की गारंटी है। और मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की भी गारंटी। विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में आज का दिन देश के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत से द्वारका एक्सप्रेसवे सहित 114 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे
रहे हैं। 29 किलोमीटर लंबा और 8 लेन वाला द्वारका एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी कुल लंबाई 563 लेन किलोमीटर होगी। इस पर 4 किलोमीटर लंबा 8 लेन टनल, सिंगल पिलर पे 8 लेन फ्लाईओवर, क्रॉस रोड अंडरपास, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जैसे फीचर होंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे से IGI एयरपोर्ट, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गुरुग्राम होते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे से हाई स्पीड कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। 112 परियोजनाओं में शामिल हैं नरेनपुर से पूर्णिया खंड, जिसके लोकार्पण से यहाँ आवागमन बेहतर होने के साथ ही यहाँ की उपज जैसे कि मखाना, जूट व मक्का की मंडियों तक बेहतर पहुँच मिलेगी। चंडीगढ़ रूपनगर मंडी मनाली कॉरिडोर के अंतर्गत कीरतपुर से नेर चौक खंड तक 4 लेन के लोकार्पण से हिमाचल के सेब को पूरे देश की मंडियों तक तेज ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा। बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे के 14 पैकेज का भी शिलान्यास आज हो रहा है। इसके पूर्ण होने से बेंगलुरु और विजयवाड़ा के बीच यात्रा की दूरी लगभग 75 किलोमीटर कम हो जाएगी। पूरे देश में विकसित होते इन सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से 21वीं सदी के भारत के लिए मजबूत रोड नेटवर्क तैयार होगा। लोगों की आवाजाही बेहतर होगी, लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी, कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, कृषि और उद्योग उत्पादों की नई मंडियों तक तेज पहुंच होगी, पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा मिलेगा, पोर्ट कनेक्टिविटी और बॉर्डर कनेक्टिविटी बेहतर होगी, रोजगार के नए आयाम खुलेंगे और आर्थिक सामाजिक विकास को बल मिलेगा। सतत विकास, समग्र विकास और सर्वांगीण विकास के लिए लगातार होते ऐसे ही ठोस प्रयासों से तो बनी है मोदी जी की गारंटी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए AI न्यूज़ को।